Everyone, how are you? I hope you will be fine. Day before yesterday, we read chapter 1, page number 3. Now we shall read chapter 1, page number 4 and 5. When I returned home, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? Ava, is everything alright? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forget about it. In the night after dinner, we were sleeping on the tops in the on the open terrace of the house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. I asked her, "What is the matter?" When I was a young girl, Ava said, "I lost my mother. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12 years old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason and why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy, and her eyes were filled with tears. Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? Yes, I need your help. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onward. I will work very hard. I will keep the Saraswati Puja day during the Shara as a deadline. That day, I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. Look, student, I read chapter 1, page number 4. I will explain you this page in Hindi. As I explained day before yesterday, the story of Sudha and her dadi. Sudha and her dadi. In this story, सुधा की जो दादी है वो कभी स्कूल नहीं गई, जिसके कारण उसको पछतावा होता है और वो चाहती है कि उसके बच्चे पूरे पढ़े लिखे। इसमें क्या होता है, अब ये स्टोरी सुधा बता रही है। एक बार मैं जब पड़ोस के गांव में शादी के लिए गई हुई थी, तब जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी माँ रो रही है। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने कभी उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रोते हुए नहीं देखा। अवा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? मैं उसे अवा कहती हूँ, जिसका अर्थ है माँ, जो उत्तर कर्नाटक में बोली जाती है। उसने सिर हिलाया पर जवाब कुछ नहीं दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई और फिर भूल गई। बच्चा होने के कारण मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। रात के समय जब खाना खाने के बाद हम छत पर सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे, पूरा चांद निकल रहा था। आवा आई और मेरे पास बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? तो आवा ने बताया, जब मैं युवा थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरी माता की मृत्यु हो गई और मेरे पिताजी काम में व्यस्त रहने लगे तथा उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई को कोई महत्ता नहीं दी जाती थी, इसलिए मैं भी कभी स्कूल नहीं जा पाई। फिर मेरी शादी हो गई और बच्चे हो गए। मैं भी अपने दिन रूटीन के काम में व्यस्त हो गई। बाद में पोते पोतियाँ हो गए और फिर मैं उनके लिए खाना बनाने, उन्हें खिलाने में व्यस्त रहने लगी और मुझे इस सब में खुशी मिलती थी। इस टाइम मुझे अपना स्कूल न जाने का पछतावा होने लगा और मैंने यह निश्चय कर लिया कि मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे, मेरे बच्चे और मेरे पोते पोते स्कूल ज़रूर जाएंगे। अब वो सोचती है कि दादी मुझे इतनी पुरानी बात क्यों बता रही है, पर उसे लगता है कि जो ये बता रही है पक्का कुछ होगा, कुछ बात होगी। उतने में दादी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह पूछती है कि दादी
आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ तो हुआ क्या? फिर दादी उसे बताती है कि जब तुम गई हुई थी शादी में एक हफ्ते के लिए, तो बुधवार के दिन मैगज़ीन आई। उसमें काशी यात्री की अगला अध्याय आया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैं पढ़ती हूँ। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, हर तरह से पेपर को रब कर करके बहुत ट्राई किया। पिक्चर बनी हुई थी, पिक्चर में भी बहुत देखा, समझने की कोशिश की, हर तरह से ट्राई किया, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा मन किया कि काश तुम जल्दी आ जाओ और मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, और फिर मुझे वो तुम मुझे स्टोरी पढ़ के सुनाओ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना हो पाया, और मैंने भी किसी को बोला नहीं कि मुझे पढ़कर सुनाओ। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रही थी, जैसे मैं मजबूर हूँ। मुझे फील हो रहा था कि मैं तुम पर कितनी डिपेंड हूँ। तो सुधा सुनती है और कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है दादी, मैं अभी आपको पढ़कर सुना देती हूँ। दादी का मतलब कुछ और ही था। दादी ने कहा, मुझे खुद पढ़ना लिखना सीखना है। मैं कन्नड़ की अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, ताकि कल कोई मुझे अनपढ़ ना कहे या मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। अब सुधा ने देखा, सुधा तो बच्ची थी और हंसने लगी। ये थी पेज नंबर 4 की हिंदी। अब मैं आपको पेज नंबर 5 इंग्लिश में रीड करके बताऊंगी। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Ava, at the age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey. Your hands are wrinkled. You wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age, no bar. The next day onward, I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher, computer science, and teach of hundreds of students. The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatri, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of a frog material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. I did return namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately. The title Kashi Yatri by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. अब now I will explain this page you in Hindi. बच्ची हंसने लगी और कहने लगी, दादी आप कैसी बातें करती हो? आपके बाल बुरे हो चुके हैं, आपकी एज भी इतनी हो गई है, घर का सारा काम करती हो, इस उम्र में पढ़ाई करोगे क्या? दादी बहुत डिटरमाइंड थी, मतलब उन्होंने ठान ली थी कि मैंने पढ़ाई करनी ही करनी है। वो सुधा को बताती है, अब जो सरस्वती पूजा आएगी दशहरे के दिन, तब तक मैं पढ़ना लिखना सीख लूँगी और ये मेरा फुल डिटर्मिनेशन है। सुधा ने इस बात को बहुत लाइटली लिया और हंसने लगी। दादी इस उम्र में कहाँ सीखेगी, बट इस चैप्टर में लिखा है कि अगर इस पाठ में आपको बताया गया है, अगर कोई भी किसी काम को करने के लिए डिटर्मिनेशन बना ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो वो हर काम कर सकता है। जैसे एक चींटी अगर निश्चय कर ले तो पहाड़ भी चढ़ सकती है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो
या कितनी भी प्रॉब्लम आए, हम उस चीज़ को अचीव कर ही लेते हैं। जब आपके पास पढ़ने की इच्छा होती है तो आप पढ़ ही लेते हैं। फिर दादी सुधा को कन्विंस कर लेती है कि तुम मुझे पढ़ना सिखाओगी, और सुधा भी मान जाती है कि मैं भी दादी को पढ़ना सिखाऊंगी। अगले दिन दादी बहुत डिटर्मिनेशन के साथ सुधा के पास आती है और पढ़ती है। सुधा भी बहुत खुश होती है कि मेरी फर्स्ट स्टूडेंट मेरी दादी है। उसके बाद जो हमारी राइटर हैं सुधा मूर्ति, ये बाद में कंप्यूटर साइंस की टीचर भी बनती हैं और उन्हें बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया होता है, लेकिन वो याद करती है, याद रहता है उन्हें कि मेरी पहली स्टूडेंट मेरी अपनी दादी थी। अब ऐसे ही वो देखती हैं दादी बहुत डिटर्मिनेशन से पढ़ रही है, लिख रही है, रिसाइट कर रही है, हर तरीके से अच्छा पढ़ रही है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, वो पढ़ती रहती है। और पढ़ने के बाद एक दिन सरस्वती माता की पूजा का दिन आता है, जो दादी ने कहा था कि मैं तब तक पढ़ना सीख जाऊंगी। तो दादी क्या करती है, सुधा को आवाज़ लगाती है और कहती है, सुधा इधर आओ। जब वो आती है तो उसे एक स्टूल पर बिठाती है और सुधा को एक फ्रॉक देती है गिफ्ट में, और सुधा के पैर छूती है। तो वह जैसे ही पैर छूती है, सुधा एकदम पीछे हो जाती है और कहती है, दादी हमने तो ये पढ़ा है कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, पर आप मेरे क्यों छू रही हो, आप तो मुझसे बड़ी हो। तब दादी कहती है, मैं तुम्हारे पैर तुम्हें अपनी पोती समझ के नहीं, एज ए टीचर, क्योंकि तुम मेरी पहली टीचर हो इसलिए छू रही हूँ। और टीचर की एज चाहे कुछ भी हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर सुधा भी दादी के लिए गिफ्ट लाई थी और गिफ्ट निकाल कर देती है दादी को। जब दादी गिफ्ट से खोलती है तो उस पर पढ़ती है, उस पर लिखा होता है काशी यात्री। अब सुधा ने क्या किया होता है, दादी के लिए काशी यात्री की पूरी नोवेल ही ला देती है। और जैसे ही दादी उसका नोवेल का नाम पढ़ती है तो दोनों ही खुश हो जाते हैं और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और अवा भी कहती है कि मेरी स्टूडेंट फ्लाइंग कलर से पास हो गई है, मतलब अच्छे अंकों से पास हो गई है, अच्छे से पास हो गई है, अब उसको पढ़ना लिखना आता है। So student, this is the story how I taught my grandmother to read. I hope you all are understand this story. Thank you. Have a nice day.